Hello students, welcome to another session. Today we are going to discuss about the other topics in the main head of matrix. So in our last class, students, we have discussed about the various properties of a determinant. By using those properties, we can find the numeric value of determinant without going through the long process that we do in the expansion method. Okay, that is the method used to find the determinant. If we ask to find the determinant of a second order or third order matrix, then what we do? We used to do the expansion method by expanding any row, any column, okay, to derive a numeric value. That is a lengthy process, as we know. Minimum 3-4 process was there. We have to follow the process to find the numeric value. To solve or to overcome that lengthy process, another thing was developed, that is the properties of determinant. Okay, so by using that property, we can easily find the numeric value of a determinant without going through the lengthy process or without following the long term process and long time. Clear? Just by applying one or more property, that we have 8 property. Out of that 8 property, for solving a problem, we can use one or more property to derive a solution. Clear? So today we are going to discuss about another way, another technique of finding determinant easily. Okay, that we call as Sarra's expansion method. Sarra's expansion method, which is famously, commonly known as Sarra's diagram. Yes or no? Sarra's diagram. Clear? But the actual name of that the method is Sarra's expansion method. Okay, why it is called Sarra's expansion method? Because it is named upon the developer of this technique, of this method, that is the French mathematician. It is developed by the French mathematician Pierre Frédéric Sarras. Okay, and based upon whose name that method is named upon, his name, that is Sarra's diagram method or Sarra's expansion method. Clear? And what is that method? Now this is another method, a new concept to determine, to find the numeric value of determinant without going through a lengthy process. That is also a short and simple method is there. Is Sarra's diagram. By applying those methods, we can derive at a solution very quickly, very simply. Okay, so let's do what is the method. Clear? So see, in that we have know that we can find the determinant using Sarra's diagram method only if it is a square matrix. This method is applicable. This method is applicable to square matrix only. Okay, students, square matrix only, because one more logic is there, that we can find determinant only of square matrix. So this method is used for finding determinant. So it means the basic thing is that we can use the square matrix. Okay, this method is applicable to square matrix only. Okay, because square matrix we can find determinant only of a square matrix. Clear? So that is a conceptual thing, that Sarra's diagram is also applicable to square matrix. Clear? So see, what we do in Sarra's diagram, we know how to find the determinant in our expansion method. Clear? And using property, and how to find the value using Sarra's diagram method. Okay, see, it's a very simple concept. See, in a square matrix we have some element. Clear? What are those elements? Those elements are named as A11,
A12, A13, yes or no? I hope clear. By the time I am writing this, you are not get confused, sir. What are those things? Okay, because all we know, A is the element, okay, that we place between the matrix or determinant, that is the element, clear, and that is the place of the element. Row 1, column 1, row 1, column 2, row 1, column 3. Similarly, A21, A22, A23, okay, A21, 22, 23, it means row 2, column 1, row 2, column 2, row 2, column 3. And then A31, A32 and A33, clear? Row 3, column 1, row 3, column 2, row 3, column 3. Okay, so that is the A square matrix. This is a square matrix. So see, now why we call it is a Saros diagram? Because this method is based upon a diagram. Clear? Out of this, clear? See, we have this as our question. ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है. अभी हमको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है बाय यूजिंग सारस डायग्राम, सारस मेथड, एक्सपांशन मेथड. सो हमें क्या करना है, अभी हमें पहले डायग्राम ड्रॉ करना है. डायग्राम ड्रॉ करने के बाद एक जो सिंपल प्रोसेस है, सिंपल स्टेप है, उसको फॉलो करेंगे तो अपने को वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ वी ड्रॉ डायग्राम? सी, इट्स अ वेरी सिंपल. व्हाट वी डू दैट, सी, ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3. तो वो जो डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, क्लियर, वी हैव टू ड्रॉ ए डायग्राम. हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम? सी, वेरी सिंपल. वी मस्ट हैव 5 column. To apply the Saras diagram, we must have 5 column. Okay, do remind it. याद रखो अच्छे से. To solve the or to find the matrix, to find the determinant using Saras method, using Saras diagram, we must have 5 column. Clear? Row 3 row required. 3 rows is required, but we required 5 column. But here we have 3 column. So now we used to draw 2 more column. That is diagram. We used to draw 2 more column. So what are the element? वो element क्या होगा? अब हमारे पास तो इतना ही एलिमेंट है, बाकी नया एलिमेंट किधर से लाएंगे? किधर से नहीं लाना है, ये इधर ही है कि नहीं? जस्ट वी नीड टू ड्रॉ 2 मोर कॉलम, दैट इज C4 एंड C5. तो C4 एंड C5 में क्या आएगा? C4 एंड C5 में क्या आएगा स्टूडेंट? सी, इट इज वेरी सिंपल. इधर है C4, C5 हमें चाहिए 2 कॉलम. अपने पास 3 कॉलम है कि नहीं? C1, C2, C3. But we required C4, C5. So what to do? See, just simply in the place of C4 write the element of C1, and in the place of C5 write the element of C2. It means ये जो C4, C5 है ना, C4, C5 के जगह पे क्या लिखना है? C4 के जगह पे लिखना है again C1, C5 के जगह पे लिखना है again C2. हो गया क्लियर? तो C4 के जगह पे C1 का एलिमेंट लिख दो. क्या है? 11, A21, A31. अगेन C5 के जगह पे क्या लिखना है? C2. C2 का एलिमेंट क्या है? A12, A22, A32. बस हो गया. आया समझ में? समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है, डायग्राम कैसे हमने बनाया? आई होप ऑल गेट क्लियर. कैसे ड्रॉ करना है? सिंपली सी, इट इज वेरी सिंपल. हमको 5 कॉलम चाहिए, ठीक है, टू अप्लाई द सारस डायग्राम मेथड. बट वी हैव इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स वी हैव ओनली 3 कॉलम. सो हमें 2 और कॉलम चाहिए, दैट इज C4, C5, 2 और कॉलम. तो वो 2 कॉलम किधर से लाएंगे? बस सिंपल अगेन 3 के बाद अगेन 1, 2 को लिख देना है, जो कि C4 है C1, C5 है C2. ओके, क्लियर? लिख दिया आपने. लिखने के बाद अभी क्या करना है? नाउ सिंपली वी ड्रॉ. क्लियर? ड्रॉ करना है. ये हो गया स्टूडेंट्स, ये आ गया समझ में? ये है उसका कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ वी नीड टू ड्रॉ. क्लियर? वी नीड टू ड्रॉ ए डायग्राम. व्हाट इज द डायग्राम? सी, ओके, डायगोनल. डायगोनल्स को
ऐड करना है डायगोनल्स को। डायगोनल मतलब जो लेफ्ट टू राइट है कि नहीं। जैसे कि देखो A11 का नेक्स्ट डायगोनल वैल्यू क्या आएगा, A22 फिर A33, ठीक है। 11 22 33, क्लियर। वैसे 12 23 31, क्लियर। देन 13 21 32, क्लियर। देखो अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम को जस्ट हमने कनेक्ट किया। हियर वी जस्ट ड्रॉ और वी कनेक्ट द डायग्राम, sorry, the diagonal values, okay, that is A11 A22 A33 A12 A23 A31 A13 A21 and A32, okay, clear है कि नहीं। नाउ व्हाट टू डू, हमें डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, उसका एक फॉर्मूला है इन सारा डायग्राम, दैट इज डिटर्मिनेंट, दैट इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट, है कि नहीं। सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे, देखो वेरी सिंपल। ये जो डायगोनल का वैल्यू है, ये 3 को मल्टीपल कर दो, A11 इंटू A22 इंटू A33, डन, ओके। पहला जो है डायगोनल जो वैल्यू आया A11 22 एंड 33, ठीक है। ये 3 को हमने ऐड कर दिया, सॉरी मल्टीपल कर दिया, प्रोडक्ट, क्लियर। अपने आप से ये तीनों क्या हो गए, मल्टीपल हो गए, ठीक है, क्लियर। फिर ये आ गया प्लस, उसको ऐड करना है किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ दिस 3, प्रोडक्ट ऑफ दिस 3, दिस 3 मतलब A12 A23। स्टूडेंट्स दिख रहा है कि मैं बड़ा कर दूं, चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये हो गया। इसको मैं भी इरेज कर देता हूं इधर से, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ हो गया ना। आई होप आप लोगों में भी ये टेक्निक जान लिया होगा। फिर मैं अभी इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। सो सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, पहले तो A11 इंटू A22 इंटू A33, ये तीनों का हमने मल्टीपल कर दिया, प्लस फिर प्लस दिस ये जो 3 है इसको A12 इंटू A23 इंटू A31, ओके। 12 23 31 जो है 12 23 31 प्लस बाकी बचा क्या, 13 21 32, A13 A21 A32 हो गया। बाकी ये सबको एक कॉमन ब्रैकेट में रख दो, ओके, इतना लिख दिया बस। नाउ बाकी अपना दूसरा पार्ट है, अभी सेकेंड पार्ट, व्हाट इज दैट, सी। अभी हम जैसे ये ऊपर से नीचे जैसे ड्रॉ किया डायगोनल को, ऊपर से नीचे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अभी क्या लेना है, नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप ड्रॉ करना है। कैसे, देखो बाकी जो जो आइटम बच गया डायगोनल, इट मस्ट बी ए डायगोनल। सी क्या है, देखो ये देखो, ओके, ये क्या एक A31 22 13 31 22 13, क्लियर। बाकी दूसरा क्या है, 32 23 32 23 and A11, ओके, 32 23 and 11। बाकी फाइनली क्या बचा, A33 21 and 12, 33 21 and 12, ठीक है। बाकी जो डायगोनल में नहीं आते हैं वो सबको छोड़ देना है। जैसे कि हमने ये लिया तो ये नहीं आता है, ये दो, ठीक है कि नहीं, ये नहीं आया, ये छोड़ दो। बाकी जो जो नहीं आया, बाकी ये करने के बाद ये तीनों नहीं आता है, इनको छोड़ दिया। फिर नीचे से ऊपर जब जाए, है कि नहीं, जब गए तभी भी क्या करना है, जो जो डायगोनल में आता है उसी को लेना है, बाकी को छोड़ देना है,
ठीक है, तो हमने क्या किया 31 22 13 32 23 11 33 21 12. ओके, सो नाउ व्हाट टू डू द नेक्स्ट प्रोसेस. इतना हो गया, दिस प्लस दिस माइनस अभी जो दूसरा वाला जो किए नीचे से ऊपर, क्या है वो कि A31 into 22 31 into 22 into A13 plus 32 23 11 A32 A23 into A11 plus 33 21 12 A33 into A21 into A12. ओके, देखो स्टूडेंट, अच्छे से देखो, क्लैरिफाई कर दो अभी से, ठीक है. मैं एक एक प्रोसेस को बड़े है धीरे से जा रहा हूं. क्लियर? आई एम गोइंग वेरी स्लो सो दैट यू माइट हैव नो डाउट क्रिएटेड ओवर हियर. एक एक प्रोसेस में बोल रहा हूं, रिपीटेड बोल रहा हूं, ठीक है. तो अच्छे से ध्यान से देखिए क्या हुआ इधर. डोंट गेट कंफ्यूज, वेरी सिंपल, ठीक है. पहले तो एक अपना 3 into 3 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट था, उसको हमने जस्ट थोड़ा एक्सटेंड किया, C4 C5, दैट इज C4 इक्वल टू C1, C5 इक्वल टू C2. क्लियर? देन उसके बाद हमने क्या किया, हो गया अपना C5 वाला हो गया 5 कॉलम वाला, ठीक है कि नहीं. तो 5 कॉलम मिलने के बाद हमने क्या किया, हमने सिंपली वो जो है डायगोनल्स को कनेक्ट कर दिया, है कि नहीं. कि देखो पूरा अब देखो, ये देखने से भी आपको पता चल देता है कि नहीं. 11 22 33 12 22 31 13 21 22 32, ये हो गया एक. ये 1 2 3 मल्टीपल करना है आपस में, प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 3 हो गया, ये हो गया एक. माइनस बाकी जो नीचे से ऊपर किए 31 22 13 32 23 11 33 21 12, ठीक है. इसको भी अभी क्या करना है, ऐसे नीचे से ऊपर, ये हो गया 3. सो दिस इंटू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस हो गया. तो ये जो ऊपर वाले सब है उसको मल्टीपल करके प्लस करके एक बनाना है, फिर नीचे वाले को मल्टीपल करके प्लस करके एक बनाना है. दो में से माइनस कर दो, जो आ गया दैट इज द वैल्यू ऑफ आवर डिटर्मिनेंट. ओके, क्लियर? प्लीज हैव ए कॉन्सेंट्रेटेड लुक ओवर इट. अच्छे से थोड़ा देख लो. अभी हम एक प्रॉब्लम करने वाले हैं, वो प्रॉब्लम में ये वाला जो है पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि सारस डायग्राम कैसा है. सारस डायग्राम का बच्चों, सारस डायग्राम का 1-2 क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है. तो देखो जल्दी, ओके, हो गया, आ गया समझ में. अभी हम इसका एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है. चलो देखो, सिंपल, वेरी सिंपल है कि नहीं, कि कुछ डिफिकल्टी आया? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स, पूरा सिंपल है कि नहीं. देखो, लेट वी टेक ए प्रॉब्लम that is, see, it is asked to find the determinant of A. एक A दे दिया है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, clear? So in just simple, by applying the Saras diagram method, we have to solve this matrix. Sorry, you have to find the numeric value of this determinant. ठीक है. तो देखो क्या करना है, वेरी सिंपल. पहले तो अपने को सारस डायग्राम बनाना है कि नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ ए सारस डायग्राम. सो इधर हम ड्रॉ कर देते हैं सारस डायग्राम. सारस डायग्राम क्या बोलता है? सारस डायग्राम जो है उसको पहले लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
देन बाकी क्या करना है, और जो दो कॉलम चाहिए C1 C2 को रिपीट करो, C1 C2 को C4 के जगह पे लिखना है C1, तो 1 4 7 हो गया। C5 के जगह पे क्या लिखना है C2 को, दैट मीन्स 2 5 8। क्लियर हो गया। नाउ अभी हमको ड्रॉ करना है। देखो स्टूडेंट, आप सब ये जब करोगे तो अच्छे से थोड़ा ड्रॉ करना है, ड्रॉ ना करने से भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, बाकी ये और इसके बीच, देन 8 6 1 9 4 2। ओके, आ गया समझ में। नाउ व्हाट वी डू, डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, जस्ट सिंपली हमको क्या करना है, पहले प्रोसेस में क्या करना है, मल्टीपल करो। 7 into 5 into 3 plus 861 plus 942, 9 into 4 into 2 हो गया। क्लियर। सिंपली हमने, सॉरी स्टूडेंट्स गलती होगी, नेगेटिव आ जाएगा ऐसे करने से, ठीक है। आपको पहले ऊपर से नीचे वाले लिखने हैं, फिर नीचे से ऊपर वाले लिखने हैं, नहीं तो अपना आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, मतलब गलत आ जाएगा, जो रियली आने वाला था वो नहीं आएगा, ठीक है। तो गलती हो गया। चलो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला, फर्स्ट टॉप टू बॉटम पहले, देन बॉटम टू टॉप वाला। तो टॉप टू बॉटम में क्या है, 159 प्लस 267, 2 into 6 into 7 plus 3 4 8, 3 into 4 into 8. Okay, now good. Now plus minus दूसरा पार्ट है 7 5 3, 7 into 5 into 3 plus 8 6 1, 8 6 1 plus 9 4 2, 9 4 2. Okay, now just simply make the calculations and find the value. ये क्या हो गया, 5 9 जा 45, 45 plus ये 6 into 7, 6 7 जा 42, 42 2 जा 84 plus 8 into 4 32, 3 जा 96. Okay, clear. Then minus ये वाला, ये हो गया 7 5 35 into 3, 35 into 3 that comes 105 plus 105 plus 8 into 6 into 1, 8 6 48, 48 into 1 48 plus बाकी 9 4 2, 9 into 4, 9 4 जा 36, 36 2 जा 72. ओके, बाकी टोटल करो, ये हो गया। So students, 225 minus 225, so we have 0. The answer is 0. 0 आ गया आंसर, है कि नहीं। सारोस डायग्राम यूज करके जब हमने निकाला उसका वैल्यू, देन द वैल्यू इज 0, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट by using Saros diagram method. Clear? Hope you all get all your doubts clear that how to use the Saros diagram. Okay? Clear? Clear students? See, so the another method to find the determinant using another method, that is Saros diagram method, is over. Now we move on to another topic of matrix, that is, see students, in the determinant part, see in your textbook, in your syllabus you have another topic, that is determinant. Okay, determinant is also covered on matrix. So okay,
So in the determinant part, what we have what is determinant, how to find determinant, minor, cofactor, properties of determinant, okay, and Saros diagram. Clear? Those we have complete over here. Now we move on to the other part of matrix, that is some new things or concepts are there in matrix that we discussed today. Okay, so lot more things are there today. After completing this Saros diagram, we are going to discuss about another topic, that is how to find the adjoint or also called adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix. Okay, so here we are going to calculate, or we are going to know what is adjoint of a matrix and how to calculate the adjoint of a matrix. Okay, see students, it is very simple. What is adjoint? It is determined that if we have a matrix, if we are going to find the adjoint of that matrix, what we do? See, adjoint of matrix is symbolized at ADJ A. ADJ A. Clear? ADJ A. A matlab A is a matrix and we need to find the adjoint of that matrix A. Clear? So ADJ is equals to, see, it is very simple. क्या करना है कि अपने पास जो मैट्रिक्स है, ठीक है, अपने पास जो मैट्रिक्स है उसका पहले हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालना है. So see, adjoint of a matrix, simply I am saying adjoint of a matrix is equals to find the cofactor, to find the cofactors of the element, जो element है उसका कोफैक्टर निकालो. कोफैक्टर निकालने के बाद वो जो पहले वाला आइटम था उसके जगह पे कोफैक्टर्स को रिप्लेस करो. फिर आफ्टर रिप्लेसिंग द कोफैक्टर्स ट्रांसपोज द मैट्रिक्स. क्लियर? सो adjoint A is equals to, that is T. Transpose we say, so we can say adjoint of a matrix, adjoint of a matrix is the transpose of the matrix, transpose of the matrix of cofactors, transpose of the matrix of cofactors, or we can say transpose of the matrix created by replacing the elements by its own cofactors. Okay, adjoint of a matrix is the transpose of the matrix created by replacing the element by its own cofactor. ठीक है? सो क्या है, देखो पहले तो क्या होता है, अपने पास जो रहता है अपना ओन वैल्यू 11, A12, A13, 21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, कि सोचो कि ये एक मैट्रिक्स है. ठीक है, सो पहले हमें क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का पहले हमें कोफैक्टर्स निकालना है, सब एक एक एलिमेंट का. लाइक A11 का कोफैक्टर क्या आएगा? ऑब्वियसली C11. A12 का C12. A13 का C13. A21 का C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33. ये अपना बन गया नया मैट्रिक्स, है कि नहीं? क्या बोला, बोलो. Adjoint of a matrix is the transpose of the matrix.
पहले हमको एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है. क्रिएटेड बाय, हाउ इट इज क्रिएटेड? इट इज क्रिएटेड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स बाय इट्स ओन कोफैक्टर. ये जो एलिमेंट्स थे हमने इसको सबको रिप्लेस कर दिया. किससे? इनके खुद के कोफैक्टर के साथ. फिर कोफैक्टर के साथ रिप्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अगर ट्रांसपोज कर देंगे दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट. ट्रांसपोज मतलब क्या पता है? रो को कलम करना है, कलम को रो करना है. चलो ये जो है पहला अपना रो वन को, ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3. हम अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो रो 1 बिकम कलम 1, रो 2 बिकम कलम 2, रो 3 बिकम कलम 3. और कलम को रो कर सकते हैं, कलम 1 बिकम रो 1, कलम 2 बिकम रो 2, कलम 3 बिकम रो 3. क्लियर? तो कोई भी कर सकते हैं. चलो रो 1 को हम अगर कन्वर्ट करते हैं, रो 1 इज ट्रांसपोज, सो नाउ इट इज C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. क्लियर? डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर कि सर आपने ये क्या लिख दिया. सिंपली वी ट्रांसपोज ओवर हियर. सो इसको क्या बोलेंगे हम? इट इज अ ट्रांसपोज. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एडजॉइंट ए. ठीक है, आ गया समझ में? समझ में आ गया? हमको एक मैट्रिक्स दिया रहा होगा, उसका पहले हम ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है. कोफैक्टर निकालने के बाद जो एलिमेंट का जो कोफैक्टर गया वो एलिमेंट को निकाल के उसके जगह पे वो कोफैक्टर लिखना है. हो गया? बस लिखने के बाद उसको ट्रांसपोज कर दो, जो आया वो है अपना एडजॉइंट ए. क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छे से देखो, थोड़ा अच्छे से देखो क्या किया हमने प्रोसेस. ओके, क्लियर? तो चलो अभी इसके ऊपर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं. लेट अस फर्स्ट टेक ए 2 into 2 एग्जांपल. ओके, लेट्स सी if we have 2 5 3 1. ओके, दैट इज द मैट्रिक्स. ये है अपना मैट्रिक्स. ठीक है, अगर डिटरमिनेंट रहेगा तो 2 बार्स देना है, मैट्रिक्स रहेगा तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट देना है. ठीक है, तो ये हो गया अपना डिटरमिनेंट. नाउ हियर वी आर आस्क्ड टू फाइंड ADJ of A. लेट दिस इज द A. ये हो गया अपना मैट्रिक्स A. इसका हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एन एलिमेंट. क्लियर? तो देन फाइंड the cofactor of element. कौन सा पहले हम निकालेंगे? A11 that is 2. और ऐसे करते हैं 2 का. ठीक है, 2 मतलब the place is A11 that is we call cofactor मतलब C11 that is -1. ठीक है, -1 to the power 1 plus 1 into 2 का माइनर क्या है? 1. So it comes -1 to the power 2. 2 मतलब +1 into 1 is equal to 1. Okay, so cofactor of 2 is equals to 1. Okay, now the cofactor of 5 that means A12 that is C12 -1 to the power 1 plus 2 into the minor of 5. The minor of 5 is 3. So it comes -1 to the power 3 means -1 into 3 is equals to -3. Okay, now the cofactor of 3 that is A21. So A21 that is C21 is equals to -1 to the power 2 plus 1 into the minor of 3 is 5. So it comes -1 to the power 2 plus 1 3 means it is -1 into 5 that comes -5. Okay, and then the cofactor of 1 that is A22 that is C22 is equals to -1 to the power 2 plus 2 into the cofactor of 1 the minor of 1 is 2. So that comes -1 to the power 2 plus 2 4 means +1 into 2 is equals to 2. Okay, clear? So we have the cofactor of all the elements. Clear? Now what to do? अभी क्या करना है?
चलो अभी क्या करना है, रिप्लेसिंग द कोफैक्टर्स ऑफ ईच elements, replacing the cofactors of each elements to form a new matrix, to form a new matrix. एक नया मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, जो कोफैक्टर्स निकले हैं जो जो एलिमेंट्स के, उसके जगह पे उनको कोफैक्टर्स को लिखना है. ठीक है, सो द कोफैक्टर ऑफ 2 इज 1. 2 के जगह पे हमने लिखा 1. द कोफैक्टर ऑफ 5 इज -3. द कोफैक्टर ऑफ 3 is -5 and the cofactor of 1 is 2. Okay, so this is what this we can say Cij. है कि नहीं? Now we need to find the adjoint A. As we know adjoint A is equal to Cij का ट्रांसपोज. Cij, ये Cij कोफैक्टर जो मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर, उसको ट्रांसपोज कर दो, वो हो गया एडजॉइंट ए. दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1. देखो क्या था, ये रो 1 को कॉलम 1 कर देंगे, रो 2 को कॉलम 2 कर देंगे. ठीक है, तो 1 - 3 बिकम 1 - 3 -5 2 बिकम -5 2. ओके, सो दिस इज द न्यू और दैट वी कॉल द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? देन ये हो गया एक 2 × 2 मैट्रिक्स. फिर हम इसको एक 3 × 3 मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं. आई होप ऑल यू गेट क्लियर. इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं है, बस सब हर एक एलिमेंट का बस सिंपल कोफैक्टर निकालो. फिर कोफैक्टर निकालने के बाद उससे एक हर एक जगह, ठीक है, एक एक एलिमेंट्स के जगह पे ही उसका कोफैक्टर लिखना है. ठीक है, लिख के एक नया मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसको ट्रांसपोज कर दो, वो हो गया एडजॉइंट ए. क्लियर? आया समझ में? कि और एक प्रॉब्लम करते हैं और एक प्रॉब्लम. चलो 3 × 3 का और एक प्रॉब्लम कर देते हैं आज. अरे ओके, सी लेट मी डू, लेते हैं एक. सी 1 2 3 5 6 8 7 9 4. ओके, सी दिस इज अ 3 × 3 मैट्रिक्स. ओके, इसका हमें निकालना है फाइंड एडजॉइंट ए. क्लियर? तो वेरी सिंपल, टू फाइंड द कोफैक्टर. ओके, द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स. कौन सा एलिमेंट? ईच एंड एवरी एलिमेंट का निकालना है. पहले चलो निकालते हैं 1 का. ओके, 1 दैट इज A11, दैट इज C11 इक्वल्स टू -1 to the power 1 + 1 इंटू. ओके, 1 का माइनर क्या होगा बोलो? 1 का माइनर 6 × 7 -9 × 8. क्लियर? 6 × 7 -9 × 8 दिख रहा है कि नहीं? 6 × 7 -9 × 8. ओके, दैट इज इक्वल्स टू -1 to the power 2 मीन्स 1 इंटू, ये क्या हो गया देखो, 6 7 42 -9 8 72. ओके, 42 - 72 दैट इज -30. ये हो गया क्या? 1 × -30 इक्वल टू -30. ओके, द माइनर ऑफ 1 इज -30. क्लियर? नाउ द सेकेंड वैल्यू दैट इज 2 का 2 मीन्स A12, दैट इज C12. C12 is equals to -1 to the power 1 + 2 into 2 मतलब 5 × 7 4 × 8. 5 × 7 -4 × 8. Okay, clear?
आ रहा है समझ में? नाउ -1 टू द पावर 3 मतलब -1 इंटू ये हो गया कितना, ये हो गया 7535 माइनस 8432. Okay, so that comes -1 into 35 minus 32 equal to 3. -1 into plus 3 is equal to -3. Okay, clear? Okay, now next the cofactor of 3. The cofactor of 3 मतलब a 13 13, that is C13, that is equals to -1 to the power 1 plus 3 into 13 का, तो मतलब 5946 5946. ओके, सो क्या हो गया, -1 to the power 4 मतलब 1 into 5 9 जा 45 minus 64 24. ओके, सो बाकी बचा कितना, 1 into 45 minus 24 is equals to 21. Okay, so 21 into 1 is equals to 21. Clear? Now 5, the cofactor of 5, that is A21, that is C21 equals to -1 to the power 2 plus 1 into 5. 5 का अगर लेंगे तो क्या जाएगा, 2 into 7 9 into 3, 2 into 7 minus 9 into 3. जैसे कि बच्चों ये थोड़ा केयरफुली लिखना है, ठीक है, इसमें अगर गलती हो गया तो लास्ट प्रोसेस में जाके आप पाओगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है. सो -1 टू द पावर 2 plus 1 3, तो हो गया -3 इंटू 7 2 जा 14 माइनस 9 3 27. ओके, तो 27 14 माइनस 27 इक्वल्स टू 13. ये हो गया -13, ये -1, ये हो गया +13. क्लियर? देन द कोफैक्टर ऑफ 6 दैट इज A22. दैट इज हम देखेंगे C22 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 plus 2 इंटू क्या बचा 6 का मतलब 1 into 7 4 into 3, 1 into 7 minus 4 into 3. Clear? 1 into 7 4 into 3. Okay, so बचा कितना, so -1 to the power 4 मतलब प्लस हो गया, ये हो गया +1 into 7 1 जा 7 minus 4 3 12. Okay, तो ये हो गया 1 into -5, that comes -5, +1 into -5 is equal to -5. Clear? And then the cofactor of 8 means8 means A23, that is C23 equals to -1 to the power 2 plus 3 into 8 का मतलब क्या हो गया, 1 into 9 4 into 2, 1 into 9 minus 4 into 2. Okay, so -1 to the power 5 मतलब -1 into 9 1 जा 9 minus 4 2 जा 8, that comes +1 -1, ये हो गया into 1 minus plus -1. क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इतना और बाकी है, और बाकियों का मेरा तो मुझे इरेज करना पड़ेगा, आप लोग जल्दी कीजिए ये, ठीक है. उससे पहले मैं लिख देता हूं ये जो वैल्यू -30, ये हो गया -3, बाकी 3 का आया कितना 21, इसका हो गया 13 -5, ये हो गया -1. ओके, चलो अभी बच गया थर्ड रो वाला, ठीक है. थर्ड रो का क्या, दी 4 मतलब A31, that is C31 is equals to -1 to the power 3 plus 1 into 4 का मतलब क्या बचा, 2 into 8 6 into 3, 2 into 8 minus 6 into 3, so बचा कितना -1 to the power 4 मतलब +1 into 8 2 जा 16, 6 3 जा
18, so हो गया -2 into 1 equals to minus. Clear? Then the cofactor of 9, that is a 32, that is c 32, -1 to the power 3 plus 2 into 9 का, so 9 का तो बचा कितना 1853, 185 into 3, so -1 to the power 3 plus 2 5 मतलब -1, okay, into ये बचा कितना 8 1 जा 8 minus 5 3 जा 15, so ये आ गया 8 minus 15 equal to -7, -7 minus 1 equal to +7. Clear? Now 7, so a 33, that is c 33 equals to -1 to the power 3 plus 3 into 7 का मतलब 1652, okay, so बचा कितना -1 to the power 6 मतलब +1 into 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 minus 5 2 जा 10, ये हो गया -4 into 1, -4 into +1 equal to -4. Clear? So ये हो गया -2, 7 and -4. Clear? देखो स्टूडेंट्स हो गया इतना. नाउ व्हाट वी डू, इतना होने के बाद हमें अभी क्या करना है, रिप्लेस द कोफैक्टर्स, और वी कैन से रिप्लेस द ओरिजिनल एलिमेंट at the place of elements to form a new matrix, that is क्या हम फॉर्म करना है, Cij हमें फॉर्म करना है. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो एलिमेंट्स के जो भी कोफैक्टर है उसको लिख दो. ठीक है, सो Cij इज इक्वल्स टू जो कि हमारा आया था 1 का -30, 2 का कोफैक्टर -3, 3 का कोफैक्टर 21, ओके, बाकी 5 का कोफैक्टर 13, 6 का कोफैक्टर -5, 8 का कोफैक्टर -1, 4 का कोफैक्टर -2, 9 का कोफैक्टर 7 and 7 का कोफैक्टर -4. Okay, this is the new matrix. Now adjoint A is equals to Cij का ट्रांसपोज, ये जो आया इसको ट्रांसपोज कर दो, क्या हो गया -30, ये जो है रो 1 को कॉलम 1 कर दो, -30 -3 21, -30 -3 21, ये हो गया 13 -5 -1 -2 7 -4. That is the answer. That is the adjoint A. Okay, clear? Okay students, I hope you all might get clear about how to find what is first of all adjoint A. Simply adjoint A is a matrix. Clear? Adjoint, or we can say adjoint A is a matrix that is created, that is formed by replacing the cofactors or the transpose of the cofactors. Clear? Transpose of the cofactors, those are replaced its elements. Clear? Now that is the process of finding it. Simply cofactor निकालो, cofactor निकालने के बाद एक एक अपना आ गया कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज कर दो, ये हो गया adjoint A. Okay, clear students? So for today we end up the class over here. So today we have discussed about the Saras diagram and adjoint of matrix. So in the next class we will discuss the other matters of matrix. Clear? So for today that's it, and hope for the best. All the best. Thank you.